اللهم صل على محمد وعلى علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لدروس الحوزة تحت الكساء من الفضل عند الله فقول النبي الذي بعثني بالحق نبيا واستفعل بالرسالة نبيا ما ذكر خبر له هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت لهم الملائكة وقطرت لهم من أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد فقال النبي صون أن يعبدي والذي بعثني من حق نبيا واستفعله بالرسالة نبيا ما ذكر كبر الحوض في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم لله وفرد الله همه فلا مؤمن الله وكشف الله ذمه ولا قول خالد إلا وقضي الله حاجته فقال وليا النسم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئة الفوز وسعدوا في الدنيا والآخرة برب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شاہ نجف بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام ہو کے کہتے تھے شاہ خدا بہن زینب سلامت لے لو میرا بہن زینب شہید ہونے برادر چلا بہن زینب سلامت لے لو میرا بہن زینب سلامت لے لو میرا بہن زینب ابھی میں تربت اصغر بنا کے آیا ہوں بجائے پانی کے آنسو بہا کے آیا ہوں نہیں ہے اب کوئی باقی بچا بہن زینب سلامت لے بہن زینب سلامت یہ ہے سکینہ تڑپتی ہے کلثوم تڑپ رہی ہے سکینہ تڑپتی ہے کلثوم شبیب روتے ہیں کہہ کے سید مظلوم میں رن کو جاتا ہوں اب الوداع بہن زینب سلامت لے لو میرا بہن زینب شہید ہونے برادر چلا بہن زینب سلام
صلی علی محمد وآل محمد. اے میرے باوفا ہے بہن بیردا، اے میرے باوفا ہے بہن بیردا، میرے غازی کہاں ہو، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، میرے غازی کہاں ہو، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزے پہ سر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو، تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے، بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا، میرے غازی کہاں ہو. حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب، اے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب، بنت فاتح خیبر، خاہر حسین زینب، دو جہاں کی شہزادی، جان پنجتن زینب، پھر وہ ہے بھتیجے کے ساتھ بے وطن زینب، ہائے وہ تیرے بازو اور رسن زینب، اے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب، خاتمہ ہوا تجھ پر ہر نئی مصیبت کا، تو نے پھر
بہن زینب کیا تھا وعدہ جو پورا وہ کر گئی زینب ستم اٹھا کے جہاں سے گزر گئی زینب جنازے بیٹوں کے آئے تو کر کے سجدے شکر جنازے بیٹوں کے آئے تو کر کے سجدے شکر بلند صبر کا معیار کر گئی زینب بلند صبر کا معیار کر گئی زینب کیا تھا وعدہ جو صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد عزیز و زینب مزدر کا آج ماتم ہے عزیز و زینب حیدر کا آج ماتم ہے علی کی لاڈلی دختر کا آج ماتم ہے غریب شاہ کی پار کا آج ماتم ہے سکون قلب خدا کے حبیب کو دیجئے بہن کا پرسہ حسین غریب کو دیجئے دوبارہ قید ہوئے جا سید سجاد اسیر کرتے ہوئے شام لے چلے جلاد روانہ ساتھ ہوئی ہے زینب ناشاد نبی کے روضہ اقدس پہ جا کے کی فریاد شہید ہو گیا بھائی حسین ہے نانا مگر نہیں ہے لینوں کو مگر نہیں ہے لینوں کو چین ہے نانا پھر آج عابد بے پر کے ساتھ جاتی ہوں یزید نحس کو خوف خدا دلاتی ہوں خدا نے چاہا تو اس لال کو چھڑاتی ہوں حیات باقی اگر ہے تو حیات باقی اگر ہے تو واپس آتی ہوں جائے راہ میں موت آئیے نانا ہماری لاش پہ آنسو ہماری لاش پہ آنسو بہائیے نانا محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فاتحہ بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی میں خبر پہ آنسو بہاؤں
آسماں و زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور حسین سے کہہ دوں گی چھوٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد روک کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں پر ظلمنا ہونا ہے قید تم کو دوبارہ فساد روزے پہ نانا جا کے اب جا کے روئیے دونوں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے برباد ہم ہوئے گہر سکینہ کے بھی اتارے شبر نے دلے ہمارے پشت پہ مارے ہے شبر نے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا تو گرا بخار میں اس کو پنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں عدو نے پھرایا تھا اماں سے آئے شکر کے نہیں لایا تھا بلوایا تھا یزید نے دربار عام میں اماں سکینہ مر گئے اماں سکینہ مر گئے زندان شام میں سوگوارے شرح ہدا زینب دوسری تو ہے فاطمہ زینب سوگوارے شرح ہدا زینب نواسی رسول برحقی نواسی رسول برحقی تیرا آرام ہے مرتبہ زینب سوگوارے شرح ہدا زینب کشتی دین مصطفیٰ کے لیے باز باہیں تیری ردا زینب سوگوارے شرح ہدا زینب سوگوارے شرح ہدا زینب بھائی باپ ستے جانے وفا تو وفا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين البر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في العرض أجمعين الإمام المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد الحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وكانت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہم سب سے پہلے آج کے شہادت کے سلسلے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی محمد وآل محمد وارث حقیقی امام زمانہ محمد وآل محمد خدمت اقدس میں تعزیت عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام مراجع کرام اور علماء عالم کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. عزاداران امام حسین، ویسے تو مجھے پڑھنا تھا یہ خطبہ جناب زینب کا جو دربار شام میں دیا تھا، لیکن وہ خطبہ اتنا دقیق ہے، اتنا وقت چاہتا ہے، وہ میں مناسب نہیں سمجھا. اس کے کچھ پوائنٹس جو ہے میں آپ کو خود مجلس کے دوران بیان کروں گا. اس کے بدلے میں جو سبجیکٹ لے کے آیا ہوں، یہ حدیث جو ہے بہت مشہور ہے. اب بے حساب مجلسوں میں بہت سارے علماء کے زبان سے یہ حدیث سنے ہوں گے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، آخر بھی بے شک، محمد بے ہے، شک. درمیانی بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہے. بے حساب سنے ہوں گے آپ. لیکن یہ حدیث کا پہلا حصہ یا بیچ کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث کا آخری حصہ ہے. اس سے پہلے بہت لمبی ایک حدیث ہے، یہ آخری حصہ ہے جو عام طور پر آپ سنتے ہیں اور پڑھا جاتا ہے. کتاب الاحتجاجات علامہ شیخ تبریسی کی، اس میں ایک طویل روایت ہے. اب روایت 6ویں امام سے ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد اور نقل کرنے والے بہت سارے امام کے صحابی ہیں. اس میں ابو بصیر ہیں، ہشام ابن حکم ہیں، مفضل ہیں، لیکن مشہور ابو بصیر ہیں. صحابی امام سے سوال کرتے ہیں، مولا بتائیے الحسن افضل ام الحسین؟ حسن افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ صحابی امام سے پوچھتے ہیں کہ حسن افضل ہے یا حسین آپ کے نسل میں، یعنی
محمد و آل محمد کے نسل میں ان کی ذریت میں کون افضل ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا وہ فضل آخرنا یلحق بفضل اولنا. امام نے کہا کہ ہمارے اول کی فضیلت آخر سے ملتی ہے اور آخر کی فضیلت اول سے ملتی ہے. ہمارا اول جتنا فضیلت والا ہے اتنا ہی آخر بھی فضیلت والا ہے. ہمارا آخر جتنا فضیلت والا ہے اتنا ہی اول بھی ہے. تم یہ مت کہنا کون افضل ہے کون نہیں ہے، ہم سب کے سب صاحب فضیلت ہیں. ٹھیک، حدیث یہیں پر ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد امام نے کہا خلقنا واحد فضلنا واحد وعلمنا واحد. ہماری خلقت بھی ایک ہے، یعنی ہماری پیدائش بھی ایک ہے، ہماری فضیلت بھی ایک ہے، ہمارا علم بھی ایک ہے. اس کے بعد پھر امام نے کہا نحن من شجرۃ برانا اللہ تعالی من طینۃ واحدہ. ہم خدا کے وہ درخت ہیں جس نورانی درخت سے ہمیں پیدا کیا گیا. ہم خدا کے وہ نورانی درخت ہیں جس کے ذریعے سے ہماری خلقت ہوئی. نحن ومنا اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کے امانت دار ہیں اللہ کے بندوں پر. ہم اللہ کے امانت دار ہیں اللہ کے بندوں پر، یعنی جو بھی خدا کی خلقت ہے. امام نے بندے کا لفظ میں نے ترجمے میں لکھا ہے، میں نے ترجمے میں کہا ہے، حالانکہ امام نے خلق کا لفظ استعمال کیا. خلق میں انسان بھی آتا ہے، جانور بھی آتا ہے، درخت بھی آتا ہے، پرندہ بھی آتا ہے، جو بھی ہے خدا کی مخلوق. امام نے کہا ہم خدا کے طرف سے امانت دار ہیں اللہ کی مخلوقات پر. وَالدُّعَاةُ إِلَىٰ دِينِهِ، اور ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وَالْحُجَّابُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، یہ بڑا عجیب و زبردست جملہ ہے. اس کے بعد امام نے کہا ہم بندے اور خدا کے بیچ میں وہ پردہ ہیں جو بندے کو خدا تک آنے سے ذریعہ بنتے ہیں، اور خدا کا پیغام بندے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. صلوات پڑھیے بیریئر ہے، ایک ایسا کرٹین ہے، ایک ایسا پردہ ہے جو بندے کا پیغام خدا تک پہنچاتے ہیں، خدا کا پیغام بندے تک پہنچاتے ہیں. ہم وہ میڈیا ہیں جو بندوں کے اور خدا کے بیچ میں ہم کام انجام دیتے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا خلقنا واحد علمنا واحد وکلنا واحد. ہماری خلقت بھی ایک ہے، ہمارا علم بھی ایک ہے، ہم سب کے سب ایک ہیں. اس کے بعد امام نے کہا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وقلنا محمد. امام کے ٹرینڈ صحابیوں میں سے، امام کے چاہنے والوں میں سے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی مدینے میں 30 پر 2000 اسٹوڈنٹس کی. آج کے دن بھی کسی بھی یونیورسٹی میں اتنے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. جو دنیا کے
टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी आप चले जाइए, 32 स्टूडेंट्स, 32,000 स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो उनको यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज देकर अपना क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए रखी होगी। इमाम के पास जो शागिर्द थे, ना इमाम से उनको कोई ज़रूरत थी, ना कोई पैसे की ज़रूरत थी, ना दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत थी, सिर्फ इल्म की तशनगी थी। इल्म की प्यास बुझाना चाहते थे, इमाम की खिदमत में खिदमत करना चाहते थे, दीन को फैलाना चाहते थे। इमाम सुबह की नमाज से लेकर 2 घंटे 3 घंटे क्लास चलाते, उसके बाद नाश्ता तनावुल फरमाते, फिर इमाम की क्लास चलती, फिर ज़ोहर का वक्त होता, फिर नमाज पढ़ते, फिर इमाम की क्लास चलती। इस तरीके से इमाम डिवीजन करके रखे, जिसमें इल्म दीन, फ़िक़्ह, लॉजिक, फ़िलासफ़ी, इल्म कलाम, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, यानी जो आज के दिन मेडिसिन, जितने भी आज के दिन जदीद उलूम हैं, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, पूरे के पूरों की तालीम इमाम स्टूडेंट्स की उसकी कैपेसिटी और उसकी एफिशिएंसी को पहचान कर उस स्टूडेंट को वो चीज़ की तालीम देते थे। 32,000 शागिर्द इमाम की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जबकि यूनिवर्सिटी का ना कोई कैंपस था, ना कोई डीन था, ना चांसलर था, ना वॉचमैन था, ना कोई लेबोरेटरी थी, ना कोई ऑफिस थी, ना एडमिनिस्ट्रेटर था, ना एचएम था, सिर्फ एक इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ कोई यूनिवर्सिटी ऐसी जिसमें एक शख्सियत 32,000 स्टूडेंट्स को टॉप लेवल की टीचिंग देता हो? कोई मामूली बात नहीं है। और इमाम के पास से तालीम हासिल करने के बाद इमाम के शागिर्द इमाम हर एक को भेजते थे, तुम बसरा जाओ, तुम बगदाद जाओ, तुम इराक जाओ, तुम फलां शहर को जाओ, तुम मिस्र को जाओ। एक एक सहाबी की एक जगह भेजते, जाओ जाकर हमारे शियों के दरमियान जो हमारे तक पहुंच नहीं सकते थे उनके दरमियान जाकर तबलीग करो, उनको हमारा दीन सिखाओ। इस तरीके से दीन फैला। इसी वजह से उस जमाने में, और आज भी आप अरब में जाएंगे तो शिया बहुत कम बोलते हैं, जाफरी बोलते हैं। अरब में जो गए हैं लोग जानते हैं ये बात। अरब में आज भी जाफरी बोलते हैं। क्यों? छठवें इमाम का नाम जो था उसी नाम से दिन मशहूर हो गया। आज भी एक चीज मशहूर है, समझते हैं आप? तो उस सहाबियों में से, वैसे तो बहुत कुछ है बयान करना चाहें तो अगर ये पूरे डिटेल्स आपको पढ़ना है तो बिहारुल अनवार पढ़िए, उसमें कम से कम 8 से 10 वॉल्यूम्स आपको ऐसी मिलेंगी जो छठवें इमाम के डिबेट्स, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम नहीं, 8 से 10 वॉल्यूम्स जिल्दें ऐसी मिलेंगी आपको जो छठवें इमाम के डिबेट्स हैं, छठवें इमाम के तालीमात हैं, जो वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर वो किताब मौजूद है। एक किताब 1 जिल्द 2 जिल्द नहीं, वो भी वो सिर्फ मुख्तसर है जो अल्लामा मजलिसी ने जमा किया है, और उसके अलावा भी और बहुत सारी किताबों में मौजूद है। तो इमाम के उन शागिर्दों में से एक शागिर्द था हिशाम इब्न हकम, बहुत ही चालाक, होशियार, समझदार और ज़िहानत रखने वाला, बहुत ही ज़हीन इमाम का सहाबी। एक बार इसका कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक ग्रुप खड़ा था, वहां पर एक आदमी खड़े होकर अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये है वो है, दीन ऐसा है, दीन वैसा है, वो सब तफसीलात में मुझे नहीं जाना है। वहां पर हिशाम इब्न हकम की उससे बहस होती है। तो वो कहता है कि सामने वाला कहता है कि तुम साबित करो कि तुम्हारा इमाम मासूम है, तुम्हारा अकीदा है। हमारा अकीदा है इमाम मासूम है, किताब में है, कुरान में है, हदीस में है, हमारा मानते हैं, हमारा अकीदा है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली तुम साबित कर सकते हो? क्या प्रैक्टिकली आप साबित कर सकते हैं? हिशाम इब्न हकम ने साबित किया प्रैक्टिकली इमाम मासूम कैसा होगा। इसका प्रूफ क्या है? पूरी तवज्जो से सुने, वक्त बहुत कम है, बहुत मैं इशारा कर निकल जाऊंगा, तफसीलात में नहीं जाऊंगा, तफसीलात में बयान करूंगा तो लुत्फ नहीं आएगा। हिशाम ने कहा कि देख,
मासूम होता आदमी खुदा की जानिब से हमारे दरमियान है या हमारा खुदा हम मानते हैं, तुम प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हो सकता है तुम जानना चाहते हो ना? सुनो, इंसान गलती करता है 4 चीजों की वजह से। एक अक्ल की कमी, दूसरा हसद, तीसरी शहवत, चौथा है गजब यानी गुस्सा। फॉलो कर रहे हैं आप? 4 चीजें, ये 4 चीजों की वजह से इंसान से गलती होती है, गुनाह होता है, जो इंसान मासूम नहीं रह जाता करने के बाद। एक अक्ल की कमी, एक हसद, एक गजब यानी गुस्सा, एक है शहवत। सामने वाले ने पूछा तुम कहना क्या चाहते हो? हिशाम ने कहा कि सुन, जब इंसान में अक्ल की कमी होती है तो इंसान अंजाम से नावाकिफ होता है। अक्ल की कमी से इंसान अंजाम से नावाकिफ होता है, जो गलती कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है। रसूल और आले रसूल को खुदा ने अक्ल के 100 हिस्सों में से 99 हिस्सा उनको अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी का 1 हिस्सा हम सारी दुनिया के लोगों में तकसीम किया। जब इतना हिस्सा अक्ल के उनके पास है तो गलती होने का कोई इम्कान ही नहीं। दूसरी वजह हसद। हसद इंसान उस वक्त करता है जब वो अपने आप को किसी दूसरे से छोटा महसूस करता है, जब खुद से दूसरे को बड़ा महसूस करता है, जब इंसान में हसद पैदा होता है। हिशाम ने कहा अहले बैत से बड़ा दुनिया में है कौन जो वो दूसरे से हसद करे, जो वो दूसरे से हसद करे। तीसरा है गजब। गजब, गुस्सा इंसान उस वक्त करता है जब उसके पास अक्ल की कमी है या उसमें हसद होता है, जब गुस्सा करता है। अहले बैत के पास अक्ल भी कामिल है और हसद भी नहीं है तो गुस्सा होने का कोई चांस ही नहीं है। चौथी है शहवत। शहवत इंसान की अक्ल के ताबे होती है, अक्ल के कंट्रोल में होती है। अगर अक्ल के कंट्रोल के बाहर शहवत हो गई तो अक्ल पर गालिब आ गई तो गुनाह होता है। अगर अक्ल उसको कंट्रोल में रखती है तो गुनाह नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अक्ल ये सारे चीजों को कंट्रोल करती है, हसद को, गजब को और शहवत को। और इमाम के पास पूरी तरीके से अक्ल कामिल है, जो ये गुनाह होने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए अहले बैत मासूम है। सलावत पढ़िए तो ऐसे बेहिसाब डिबेट्स उस जमाने में पाए जाते थे और इमाम के सहाबियों ने कारनामे अंजाम दिए हैं। तो इसी हिशाम से एक और जगह पर एक और इंसान ने सवाल किया कि उसने पूछा और जअलना अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, खुदा ये कह रहा है कि हमने इमामों को करार दिया है, इमामों को कायम किया है, इमामों को भेजा है जो अम्र इलाही से हिदायत करते हैं। वो जअलना अइम्मतन, हमने अइम्मा को, इमामों को कायनात में भेजा है, यहदूना बिअम्रिना, जो हिदायत करते हैं अम्र परवरदिगार से। तो हिशाम ने कहा क्या इसमें कोई शक क्या है? अम्र परवरदिगार से तो इमाम हुक्म, अगर अम्र परवरदिगार से तो इमाम हिदायत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस आदमी ने पूछा कि तो इसकी तुम वजाहत करो ताकि मुझे समझ में आए। हिशाम ने कहा कि देख, एक हुक्म इलाही है, एक मशीयत इलाही है, एक खल्क़ इलाही है, एक अम्र इलाही है।
पूरी तवज्जो, कहीं सब्जेक्ट गाढ़ा तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? जी सलवात बढ़िया मोहम्मद। एक हुक्म इलाही, एक मशीयत इलाही, एक खल्क़ इलाही, एक अम्र इलाही। हुक्म इलाही अल्लाह का हुक्म, मशीयत यानी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की नियत, अल्लाह का इरादा, मशीयत अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह की चाहत। और उसके बाद हिशाम ने कहा कि देख, खल्क़ इलाही में हुक्म इलाही और मशीयत इलाही होता है, लेकिन अम्र इलाही में भी होता है। फर्क एक छोटा सा है, पूरी तवज्जो से सुने। एक है खल्क़, एक है अम्र। ठीक, खल्क़ उसे कहते हैं अरबी जबान में जो नशो नुमा पाता है, ग्रो होता है। जैसा इंसान माँ के पेट में नुत्फा आता है, उसके बाद खून का लोथड़ा बनता है, उसके बाद उसमें हाथ पैर आते हैं, हड्डी आती है, जान आती है। 9 महीने के बाद दुनिया में आता है, आते ही वो चल फिर नहीं सकता, हाथ पैर हिलाता है। 4-6 महीने के बाद करवट बदलता है, 7-8 महीने के बाद रेंगता है, 1 साल के बाद चलता है, उसको खा नहीं सकता, दूसरे खिलाते हैं, उसके बाद खाने लगता है, उसके बाद बढ़ता है, फिर कमाने लगता है। यानी इसे क्या कहते हैं? जिसमें ग्रेजुअली ग्रोथ होता है, उसे खल्क़ कहते हैं अरबी में। गौर करें इस जुमले पर, पूरी तवज्जो रखें। जिस खुदा की पैदाइश आहिस्ता आहिस्ता नशो नुमा पाती है, उसे कहते हैं खल्क़ इलाही। जैसा दरख्त जमीन में आप बीज डालेंगे तो फौरन दरख्त नहीं बनता, 8-10 दिन के बाद बीज फूटती है, उसमें पतली सी बाली आती है, महीना 2 महीने के बाद उसके अंदर जो है पत्ते आते हैं, फिर 1-2 साल के बाद बड़ा होता है, 8 साल 10 साल में शाखें आती हैं, उसके बाद फल देने लगता है। यानी जो आहिस्ता आहिस्ता जिसकी पैदाइश हो, ग्रेजुअली जिसके अंदर पैदाइश हो, उसे कहते हैं खल्क़ इलाही। चाहे वो इंसान हो, मछली हो, परिंदा हो, पहाड़ हो, दरख्त हो, हम हो, चाहे कोई भी हो दुनिया में, सब खल्क़ इलाही है। ये खल्क़ इलाही में हुक्म इलाही भी होता है, मशीयत इलाही भी होता है। खल्क़ इलाही में इंसान की पैदाइश में, जानवरों की पैदाइश में, कायनात की पैदाइश में हुक्म परवरदिगार शामिल होता है, साथ में मर्ज़ी परवरदिगार, मशीयत परवरदिगार भी शामिल होती है। जो आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रो करे उसे कहते हैं खल्क़ इलाही, जिसमें हुक्म इलाही और मशीयत इलाही शामिल है। और अम्र इलाही में भी हुक्म इलाही और मशीयत इलाही शामिल होता है, लेकिन अम्र इलाही खल्क़ इलाही नहीं है। अम्र इलाही वो है जो खल्क़ इलाही से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि सूरह यासीन के आखिरी जुमले में आप सब पढ़ते होंगे, इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अम्र परवरदिगार यह है कि अगर खुदा किसी चीज को चाहता है कि हो जा, तो वो फौरन हो जाती है। अम्र इलाही में ग्रेजुअली ग्रोथ नहीं होता, खल्क़ इलाही में ग्रेजुअल ग्रोथ होता है। अम्र इलाही में ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं होता। वहां पर खुदा का हुक्म आया, हो जा, तो वो हो गई। तो खुदा ने जो इमामों को भेजा है वो खल्क़ इलाही से नहीं, अम्र इलाही से बढ़ते हैं, अम्र इलाही से तबलीग करते हैं कि किसी मुर्दे को कहते हैं कि जिंदा हो जा, तो वो हो जाता है। जिंदे से कहते हैं कि मर जा, तो वो मर जाता है। सुभान अल्लाह। खुदा अपने अइम्मा को अम्र इलाही देकर भेजता है। खल्क़ इलाही तो हम लोग हैं। बेशक बेशक। अगर इमाम खल्क़ इलाही से तबलीग करते तो दुनिया में दीन फैलता ही नहीं।
इमामों ने अम्र इलाही से तबलीग की है, अम्र इलाही से दीन को फैलाया है। यह है अम्र का मानी। समझ रहे हैं आप? इसके ऊपर अभी बहुत तफसील से बयान हो सकता है, बेहिसाब मिसालें हैं अम्र इलाही में। उसी में की एक मिसाल इमाम का नूर भी है। अम्र इलाही से इमाम का नूर सैर करता है, सफर करता है। आज आपको मैं वो मैथ्स को हल कर देता हूं जो जमाने से हमारे दरमियान मौजूद है, एक सोल्यूशन है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। जो दुनिया ने जो नूर बनाया है, जो लाइट जिसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? यहाँ पर कौन है साइंस के स्टूडेंट्स, बता सकते हैं? रोशनी। नूर की तारीफ क्या है? लाइट किस में आती है? केमिस्ट्री में आती है, फिजिक्स में आती है, बायोलॉजी में आती है, ज़ूलॉजी में आती है, बॉटनी में आती है, फिजिक्स में, कंप्यूटर में आती है, फिजिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। किस में आती है लाइट? फिजिक्स में आती है। तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स कौन है यहाँ पर? What is the definition of light? बोलो भाई, मजाक नहीं, seriously I am asking, what is the definition of light? इस्लाम के दामन में जो नूर की तारीफ है, जो लाइट की तारीफ है, वो ये है अरबी में, ज़ाहिरुन लिनफ्सिही मुज़हिरुन लिग़ैरिही। नूर उसे कहते हैं, लाइट उसे कहते हैं जो खुद भी चमकता है, दूसरों को भी चमकाता है। ये उसकी तारीफ है, ये उसका डेफिनेशन है नूर का। जो खुद भी चमकता है, जो उसके हल्के में आता है उसे भी चमकाता है, खुद भी चमक कर दिखाता है, जो उसके पास होते हैं उनको भी उजाले में लाता है। यानी यूं कहें कि नूर के मानी हिदायत है। इंसान खुद हिदायत याफ्ता होता है, दूसरों को भी हिदायत बख्शता है। कुरान में नूर को हिदायत के लफ्ज में भी लिया गया है, लेकिन अब हमें उस पॉइंट में नहीं जाना है। तो दुनिया जब तरक्की करी 1400 साल पहले नहीं, अब लाइट इजाद होके कितने दिन हुआ? करंट आकर मैक्सिमम 70 साल, 60 या 70 साल, बहुत मैक्सिमम पकड़े तो 100 साल, उससे ज्यादा, उससे पहले तो लाइट पैदा नहीं हुई थी। उसके बाद ही आई। पहले सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था, पानी से करंट बनता था। अब उसके बाद थर्मल पावर है। अब नहीं मालूम आगे चलकर किस किस में पावर बनने वाला है। खैर, तो ये जब लाइट इजाद हुई तो उसकी स्पीड क्या है बता सकते हैं? ये तो बता सकते हैं ना आप लोग जी, 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड है। 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं सेकेंड बहुत आसानी से बोल दिया। एक सेकेंड में 10 फ्रैक्शन होते हैं। Am I right? एक सेकेंड में 10 फ्रैक्शन होते हैं। तो आप एक सेकेंड जो चुटकी बजाते हैं, इसके अंदर 10 फ्रैक्शंस पाए जाते हैं। आप इंडिया में बैठकर कंप्यूटर में मेल टाइप कर आप सेंड का बटन मारेंगे, अमेरिका में उन्हें खोल लेगा, फौरन मैसेज मिल जाता है। यानी हजारों किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर वहां मेल पहुंच जाता है। चाहे आप बाजू बैठकर खोलो या अमेरिका में बैठ के खोलो या ऑस्ट्रिया में बैठ कर खोलो, कहीं पर भी खोलो, फौरन मेल मिल जाता है। ये है लाइट की स्पीड। यहाँ पर आपने बटन डाला, इधर लाइट चालू हो गया। तो ये लाइट की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो है 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, पर मिनट नहीं, पर सेकेंड है। ये कौन सी लाइट है, या कौन सा नूर है जो हम लोगों ने बनाया है? पूरी तवज्जो। ये वो नूर का स्पीड है जिसे हम लोगों ने बनाया है। इंसानों के बनाए हुए नूर में 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो वो नूर
خدا نے بنایا اور اس نور سے جو اہل بیت کو پیدا کیا. میں ایک منزل پر لانا چاہتا ہوں. اور اس نور سے اہل بیت کو پیدا کیا تو اس نور کی سپیڈ کیا ہوگی؟ جو حدیث آپ سنتے ہیں علی ایک ہی وقت میں 40 لوگوں کے پاس مہمان تھے تو کیسے تھے؟ آسمان میں جبرائیل کے پاس بھی تھے, میدان میں بھی تھے, رسول کے گھر میں بھی تھے, صحابیوں کے گھر میں بھی تھے. یہ نور کا سپیڈ تھا جو وہ زمانے میں لوگ پہچان نہیں سکتے. علی کی بادشاہی ہے, علی ہی ذکر الہی ہے. با پنجتن پاک سوا لاکھ نعرہ حیدری, آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سمجھ میں آیا؟ اہل بیت کا نور یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا, یہ کتاب کی لکھی لکھائی باتیں نہیں ہیں, یہ فیکٹ ہے, ٹیکنالوجیکل فیکٹ ہے, سائنٹیفک فیکٹ ہے. اہل بیت کی شخصیت خالی ہم عقیدہ اور کتابوں میں پڑھ لکھ کر نہیں جمائے ہیں اپنے دماغ میں, it is technically possible. اہل بیت کے فضائل ٹیکنیکلی آپ آزما کر دیکھیں, کوئی فضیلت عقیدہ ان کی سنی سنائی چیزوں پر نہیں ہے. پوری طریقے سے آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اسے آزما سکتے ہیں, اسی کو فضیلت بولتے ہیں. سنی سنائی باتوں کے اوپر مان لے ہمارا عقیدہ بنا رہے, وہ فضیلت نہیں ہے. اور فضیلت اس سے بڑی یہ ہے جو دشمن گواہی دے. والفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. دوستوں سبھی تک گواہی دیتے ہیں کہ یہ صاحب فضیلت ہے. عزاداران حسین وقت ہو چلا ہے, صرف 10-15 منٹ ہاتھ میں رہ گئے ہیں. آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت سے کچھ عرض کر دوں. یاد کریں کہ 60 ہجری 15 رجب کو ماویہ کا انتقال ہوتا ہے, فاصل جہنم ہوتا ہے. 60 ہجری 15 رجب. اس کے بعد یزید کے عرش نشین ہوتا ہے. اور 61 ہجری 60 پر 1 ہجری محرم کے 10 تاریخ کو کربلا کا واقعہ ہوتا ہے. جیسے ہی یہ تخت پر بیٹھتا ہے, پہلا جرم اس نے بیٹھتے ہی, یعنی 15 کو وہ بیٹھتا ہے, فوراً وہاں سے خط بھیجتا ہے کہ امام حسین سے بیعت لو ورنہ ان کا سر قلم کر دو. وہاں سے امام رجب کے 28 کو ہی نکل جاتے ہیں, یعنی بالکل 12-13 دن میں. بعد میں 61 ہجری کے 10 تاریخ کو کربلا کا واقعہ, یہ پہلا اس کا جرم ہے. اس کے بعد دوسرا جرم اس کا یہ ہے, 60 پر 2 ہجری کو کربلا مدینے میں ایک واقعہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں واقعہ برہ. پھر 60 پر 3 ہجری میں ایک واقعہ ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر آگ کے گولوں کی بارش. 3 کارنامے 3 سال میں یہ کرتا ہے, اس کے بعد مر جاتا ہے. لیکن واقعہ غرہ, یہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ تو آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, اور جو مختار جو سیریل آتا ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے. لیکن واقعہ غرہ آپ نے کبھی نہ دیکھا نہیں ہوگا, کسی سیریل میں نہیں بتایا ہے. یہ شیخ عباس قمی جن کی ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان, ان کی ایک کتاب ہے منتہی الاعمال جو 14 معصومین کی بایوگرافی پر ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ غرہ کربلا کے بعد مدینے میں یزید کی فوجوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی پورے مدینے میں.
रसूल खुदा के मकबरे को घोड़ों के खड़े होने की जगह बना दी, जहां पर घोड़े गलाजत करते थे, अस्तबल बना दिया घोड़ों का। पूरे मदीने में चुन चुन कर सहाबी रसूल को मारा गया। बहुत सारे औरतों की इज्जत लूटी गई। वाक़े करबला के बाद बेहिसाब नाजायज औलाद पैदा हुई। इतना लूटा इन लोगों ने, यहाँ तक कि घरों में पलने वाले कबूतरों को भी ज़िबा कर दिया। कबूतरों को तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी तफसील है। पूरा मदीना खून से लहू लहान, तबाही मचाया। उसके बाद खाने काबा पर हमला। ये सारा वाक़या करबला के बाद हुआ अजीज़ान मोहतरम। और जब जनाब ज़ैनब करबला से कूफा, कूफा से शाम जब आई हैं, शाम में दरबार यजीद में खड़े होकर जनाब ज़ैनब ने जो खुतबा दिया वो बड़ा मारिफतुल अरा खुतबा है। किताब नासिखुत तवारीख में वो पूरा खुतबा तफसील के साथ है। बाजार शाम का भी है, दरबार शाम का भी है, कूफे के दरबार का है, कूफे के बाजार का, पूरे खुतबे हैं उसके अंदर। लेकिन मुझे पूरा खुतबा नहीं पढ़ना है। उसमें जनाब ज़ैनब ये यजीद से कहती है, ऐ यजीद, तू क्या ये समझ रहा है हम लोगों को, हमारे मर्दों को कत्ल कर कर, हमको असीर बनाकर, जमीन और आसमान हमारे पर तूने तंग कर दिया, तो क्या हम लोग डर जाएंगे? क्या तूने अल्लाह का वो इरशाद नहीं पढ़ा कुरान में, ला यहसबन्नल लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरा इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा व लहुम अज़ाबुन मुहीन। क्या कुरान में खुदा का ये इरशाद तूने नहीं पढ़ा कि वो लोग जिसने कुफ्र किया है और खुदा ने उनको ढील दे रखी है, तो ये ना समझें कि ढील उनकी अच्छाई के लिए है, बल्कि ये जो ढील उन्हें दी गई है ताकि उनके गुनाह ज्यादा हो सके। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और उनको दर्दनाक अजाब खुदा ने रखा है। उसके बाद जनाब ज़ैनब कहती हैं, या यजीद, ऐ यजीद, तक़दीरों का हराइरत वो सूख का बनात रसूलुल्लाह सबाया। ऐ यजीद, तेरे औरतें पर्दे के अंदर, घर के अंदर छुपी हुई बेटी है, और आले रसूल को, रसूल की बेटियों को तू बाजार में असीर बनाकर फिरा रहा है। क्या यही तेरी अदालत है? ये सारा खुतबा होते होते आखिरी में जनाब ज़ैनब कहती हैं, ऐ यजीद, फकिद कैदक वसआ सायक व नासिब जहदक फ़इन्नका ला तुमीतु वह्यना वला तम्हु ज़िक्रना। उसके बाद जनाब ज़ैनब चैलेंज कर कर कहती है, ऐ यजीद, तू जो हथकंडा अपनाना है अपना ले, तू जो कोशिश करना है कर ले, जो चाल चलना है चल ले, जो चाहता है वो कर ले, तू हरगिज हमारे खानदान के वही इलाही को मिटा नहीं सकता, हमारे जिक्र को खत्म नहीं कर सकता। ये जनाब ज़ैनब का चैलेंज है दरबार यजीद। तू जो चाहता है वो करके देख ले, झूठा प्रोपेगेंडा करना है कर ले, साजिशें रचाना है रचा ले, लेकिन तू जिक्र अहले बैत को ना मिटा सकता है, ना वही इलाही को तू खत्म कर सकता है। हाँ ज़ादारो, ये वही जनाब ज़ैनब है, ये वही जनाब ज़ैनब जो कुर्बानी इमाम हुसैन जो करबला में ख़त्म होने के बाद उस मिशन को लेकर जो कूफे, करबला से कूफा, कूफा से शाम तक आई और मकसद हुसैन को एक नई जिंदगी अता की। हाँ ज़ादारान हुसैन, ये वो जनाब ज़ैनब हैं जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नाम दिया था ज़ैनब। ज़ादारो, ये ज़ैनब के मानी क्या है? ज़ीनतुन लिल अब, इसे शार्ट में ज़ैनब कहा जाता है, यानी बाप के लिए ज़ीनत, बाप के लिए ज़ीनत, अली की ज़ीनत। अली का नाम सारे लोगों के लिए ज़ीनत है, अली सारी कायनात के लिए ज़ीनत है, लेकिन अली के लिए
लिए जीनत उनकी बेटी है। पूरी कायनात के लिए अली जीनत है, लेकिन अली की शख्सियत के लिए उनकी बेटी जीनत है। इतना एहतराम वाला, इतना करामत वाला नाम है ज़ैनब, जो मौला कायनात ने जो नाम दिया है अज़ादारान इमाम हुसैन। ये वो ज़ैनब थी जो कूफा और शाम के बाजारों में जब खुतबा देती थी तो लोग समझते थे कि कहीं अली तो नहीं बोल रहे हैं। ये अली की बेटी थी जो अली के लहजे में गुफ्तगू करती थी, जो अली के लहजे में सारी कायनात को, सारे लोगों को पैगाम इस्लाम, अपनी मज़लूमियत और हुसैन की शहादत को बयान करती थी। हाँ, ज़ादारान इमाम हुसैन, एक वक्त ऐसा आया जब जनाब ज़ैनब को फिर से असीर कर कर जब शाम की तरफ ले जाया गया तो उस वक्त जनाब ज़ैनब ने कहा अब मैं दोबारा बाजार दरबार शाम में अब मैं नंगे सर नहीं जा सकती, खुदाया मुझे अब ये मंजूर नहीं है। हाँ ज़ादारो, ये वो जगह थी जहाँ पर इमाम हुसैन का सर उस दरख्त के बोला बुलंदी पर रखा गया था। वो जगह थी जो मंजर देखकर जनाब ज़ैनब को अपने भाई की शहादत और उनकी तशनगी और उनके सर से टपकता हुआ खून देखकर वो मंजर याद आया और रोते रोते गश खाकर गिर गई। उसके बाजू से एक नहर जा रही थी। हाँ ज़ादारो, उस नहर पे जनाब ज़ैनब गश खाकर गिरती है, जिसकी वजह से पानी जाना बंद हो जाता है। उस बाग का माली पानी बंद होने की वजह जानने के लिए बेलचा लेते हुए जमीन पर मारते जाता है और जनाब ज़ैनब के फर्क़े मुबारक पर वो बेलचा पड़ता है, सर से खून का फव्वारा बुलंद होता है, पानी में खून जारी होता है, माली परेशान होता है। आखिर ये कौन है जिसका कत्ल मेरे हाथ से हो गया, कौन सा गुनाह मुझसे हो गया? वो माली आकर जनाब ज़ैनब से माफी मांगता है। जनाब ज़ैनब ने कहा मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन ये जमीन तो मेरे लिए मुख्तस कर दे, यहीं पर मुझे दफन करना। आज भी जनाब ज़ैनब का रौज़ा शाम में आबाद व शाद है। आप सब लोग ज़ियारतों पे जाओ। लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून, व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनिहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहया'i मिनहुम वल अमवात, वाक़िम बैनना व बैनहुम बिल ख़ैरात, इन्नका मुजीबुद दअवात।